everyone, myself Rishabh Singh, currently second year student of BIT Mesra, and today I am going to discuss a topic called hybridization. So before starting hybridization, first we will discuss why we need hybridization. Okay, so before hybridization, we was using valence bond theory. Okay, before hybridization, we was using valence bond theory to explain the characteristic of atomic molecule. But valence bond theory was unable to explain certain characteristic property of monoatomic molecule like NH3, H2O, CH4 and so on. ठीक है, तो जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी था, द ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ NH3, H2O and CH4 can't be explained by using valence bond theory. Then we need hybridization. So there was a scientist called Pauling who introduced the concept of hybridization to explain the shape of this kind of monoatomic molecule. So now, तो चलिए शुरू करते हैं हाइब्रिडाइजेशन. सो फर्स्ट, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन है क्या? हाइब्रिडाइजेशन इज सिंपली द मिक्सिंग. Hybridization is simply the mixing of different kind of atomic orbital, but that different kind of atomic orbital पे एक terms and condition है कि that atomic orbital must have to be either of same energy or slightly difference in energy. जो भी दो atomic orbital आपस में intermix करेगा, जो भी दो atomic orbital आपस में intermix करेगा to form hybrid orbital, that atomic orbital must have to be either contain same energy or slightly difference in energy. So hybridization क्या है? Atomic orbital of same energy or nearly same energy intermix to give a new orbital of completely same energy. मतलब जब दो या उससे ज्यादा atomic orbital ऑफ सेम एनर्जी और नियरली सेम एनर्जी एक दूसरे के साथ मिक्स करें टू गिव अ न्यू ऑर्बिटल ऑफ कंप्लीटली सेम एनर्जी. सो दैट थिंग इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन. ओके, सो दैट थिंग इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन. तो एक एग्जांपल से समझते हैं, लाइक कार्बन 6. द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन 6 इज 1s2, 2s2, 2p2. okay, now we have this 2s, we have this 2p, then there will be first excited state. This is the first excited state. Okay, this is 2s, this is 2p and it is first excited state. First excited state. Okay, then this will combine to form a new orbital of completely same energy. This will combine to form a new orbital of completely same energy. यहाँ पे 2s है, 2p है. जाहिर सा बात है 2s and 2p have different energy. p has more energy, तभी तो वो बाद में भर रहा है. ओके, बट जो डिफरेंस है एनर्जी का 2s एंड 2p का, इट इज वेरी स्लाइट डिफरेंस. देयर इज अ नो वेरी बिग डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ 2s एंड 2p. देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन 2s एंड 2p. आखिर शेल नंबर तो सेम है ना, 2s एंड 2p सेम सेल में. ठीक है, तो जो डिफरेंस है दोनों 2s एंड 2p का वो बहुत ही कम है. सो दे कैन कंबाइन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. द एनर्जी मस्ट हैव टू बी सेम और स्लाइटली डिफरेंट. तो 2p का ये तीनों ऑर्बिटल का सेम एनर्जी है एंड 2s एंड 2p में स्लाइटली डिफरेंस है. सो दे विल कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू ऑर्बिटल of completely same energy, and these 4 orbital have the same energy, completely same energy. Okay, and since this new orbital is forming by the intermixing of 1s and 3p, hence this new orbital will be sp3, and all will have the same energy.
and this form new orbital is called hybrid orbital. Hybrid orbital. This is called hybrid orbital. So when atomic orbital of same energy or nearly same energy intermix to give a new orbital of completely same energy, it is called hybridization, and the new orbital so formed during this process is called hybrid orbital, and the new orbital so formed during this process is called hybrid orbital. ठीक है? Okay, this is the definition of hybridization, and this is how the intermixing of the atomic orbital take place, and this is the way how which hybrid orbital form. सिंपल भाषा में हाइब्रिडाइजेशन है मेल मिलाओ, एटॉमिक ऑर्बिटल का मेल मिलाओ, बट मेल मिलाओ दो अपोजिट नेचर का नहीं, मेल मिलाओ दो सेम नेचर और स्लाइटली डिफरेंट इन नेचर चलेगा, नहीं तो फिर टकराव स्टार्ट हो जाएगा. ओके, तो डेट इज हाइब्रिडाइजेशन कि एटॉमिक ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग. बट ध्यान क्या रखना है, दैट एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव द सेम एनर्जी और स्लाइटली डिफरेंस इन एनर्जी, नॉट लार्ज डिफरेंस इन एनर्जी, वरना फिर टकरार स्टार्ट. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब बात करते हैं कि कौन सा ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा. फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और एम्प्टी ऑर्बिटल. तो जवाब है सारा का सारा ऑर्बिटल, फुल्ली फिल्ड एज वेल एज हाफ फिल्ड एज वेल एज एम्प्टी ऑर्बिटल, दे ऑल टेक पार्ट इन द हाइब्रिडाइजेशन. कैसे? तो ये पॉइंट को लिख सकते हैं कि ऑर्बिटल विच टेक part in hybridization. So बहुत सारे बुक में केवल दिया हुआ है कि पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल टेक पार्टिसिपेट इन द हाइब्रिडाइजेशन. नहीं, पार्शियली फिल्ड, फुल्ली फिल्ड एंड एम्प्टी ऑर्बिटल दे ऑल कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. कैसे? partially filled, empty and fully filled orbital. ओके, तो पार्शियली फिल्ड, सिंपल सा बात है, पार्शियली फिल्ड कैसे पार्टिसिपेट करेगा? बॉन्ड फॉर्मेशन. जैसे अभी हम एग्जांपल देखें कार्बन का, वहां पे हाइब्रिडाइजेशन कैसे हो रहा था? बॉन्ड फॉर्म करके आपस में. एम्प्टी ऑर्बिटल कैसे लेगा पार्टिसिपेट हाइब्रिडाइजेशन में? बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि एम्प्टी ऑर्बिटल कैसे पार्टिसिपेट करता है हाइब्रिडाइजेशन में, दैट इज बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड. एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल कैसे करता है? बाय लोन पेयर. Okay, so all the orbital can take part in hybridization. Partially filled by the bond formation, empty by coordinate bond and fully filled by the lone pair. Okay, so I think this is clear. तो बुझे ना? बुझे क्या हो गया? हाँ, एक चीज भूल गया था, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल. जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करेंगे टू गिव हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो वो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना फॉर्म करेगा? ऐसा तो नहीं ना कि हम 4 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स कर रहे हैं और हमको हाइब्रिड ऑर्बिटल 6 मिल जाएगा, या ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम 4 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स कर रहे हैं और हमको 2 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेगा. तो जवाब है नहीं, हम जितना एटॉमिक ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करेंगे हमको उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेगा. इट मीन्स दैट द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग टू फॉर्म हाइब्रिडाइजेशन. नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग टू फॉर्म
हाइब्रिडाइजेशन मतलब जितना नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेगा उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करेगा, ना उससे ज़्यादा एंड ना उससे कम। ओके, सो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल form that will be always equal to number of atomic orbital participating in hybridization। okay, so number of hybrid orbital is always equal to the number of atomic orbital participating in hybridization। सिंपल सा चीज है, ज्यादा टाइम बर्बाद करने का जरूरत नहीं है। नाउ अभी तक जितना पढ़े उससे एग्जाम में आएगा कुछ भी नहीं। एग्जाम में आपसे क्या पूछेगा? हाइब्रिडाइजेशन। एग्जाम में क्या पूछेगा? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कोई भी एक मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल दे देगा और उसका हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा। तो अब आते हैं उस पोर्शन पे जो एग्जाम में पूछेगा कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, रूल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सो जो पहला रूल है वो है ऐसे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए जिसके पास सिर्फ एक सेंट्रल एटम है एंड मैक्सिमम क्वेश्चन मोर देन 90% क्वेश्चन इसी फॉर्मूला से लग जाएगा। मोर देन 90% क्वेश्चन इसी फॉर्मूला से लग जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है? हम क्या करेंगे ना, हम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फाइंड करेंगे और जब हमको नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल जाएगा तो हम उससे हाइब्रिडाइजेशन पता कर लेंगे। कैसे? देखते हैं कैसे। हम क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ, पहले रूल किसके लिए है? फॉर दोज मॉलिक्यूल which has only one central atom। okay, तो दिस रूल इज फॉर दोज मॉलिक्यूल विच हैज ओनली वन सेंट्रल एटम, ऐसे मॉलिक्यूल जिसके पास एक सेंट्रल एटम है। अब रूल क्या है? हमको क्या करना है? हमको नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालता है। हैज रिप्रेजेंट नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो जो फॉर्मूला है ना वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम प्लस और माइनस गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द हाइब्रिड ऑर्बिटल इन द केस व्हेन देयर इज ओनली वन सेंट्रल एटम। क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट इज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जो भी सेंट्रल एटम है उस एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। अब मोनोवैलेंट एटम किसको बोलते हैं? मोनोवैलेंट एटम उसको बोलते हैं, उस एटम को बोलते हैं मोनोवैलेंट एटम जिस एटम का वैलेंसी 1 होता है। दोज एटम हुज वैलेंसी इज 1 इज सेड टू बी मोनोवैलेंट एटम। दोज एटम हुज वैलेंसी इज 1 इज सेड टू बी मोनोवैलेंट एटम। ओके, देन प्लस और माइनस गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। okay, this will give the number of hybrid orbital and according to the number of hybrid orbital we can easily determine the hybridization। अगर number of hybrid orbital 2 है मतलब hybridization sp है, number of hybrid orbital 3 है मतलब hybridization sp2 है, number of hybrid orbital 4 है मतलब hybridization sp3 है। ओके, चलिए अब इस फॉर्मूला का यूज करके हम कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, कैसे निकालना है? तो यहाँ फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को रहने देते। लाइक पहला क्वेश्चन है हमारे पास है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ H2SO4। ओके, तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ H2SO4
इसमें सेंट्रल एटम क्या है? द सेंट्रल एटम इन दिस इज सल्फर। सल्फर हमारा सेंट्रल एटम है। मोनोवैलेंट एटम है तो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, हेंस हाइड्रोजन इज अ मोनोवैलेंट एटम। हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, इसलिए हाइड्रोजन मोनोवैलेंट एटम। सल्फर हमारा सेंट्रल एटम एंड ऑक्सीजन कम को काम नहीं है। ओके, तो हम हाइब्रिड ऑर्बिटल के फॉर्मूला में पुट करेंगे, कैसे निकलेगा? तो ये मेरा हो जाएगा, ये क्या बोलता है हमको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम क्या है मेरा? सल्फर। सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑक्सीजन एंड देन सल्फर, मींस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 6 प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम इज 2। 2 हाइड्रोजन है, मतलब नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम इज 2 प्लस, और गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा है, न्यूट्रल एटम है, हेंस नाउ डिवाइडेड बाई 2, दिस विल गिव 8/2 दैट इज 4। मतलब नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल मेरा कितना निकला? 4। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना निकला? 4। मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। sp3 में ही तो मेरा 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, एक s का एंड 3 p का। जब एक s प्लस 3 p मिलता है तो ही तो मेरा sp3 बनता है। तो जब यहाँ पे कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया? एक s 3 p, मतलब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलके बनाया sp3, और H2SO4 का नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 है, मतलब H2SO4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। ओके, मुझे बुझ गया हो गया। चलो तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। I3 माइनस, ये जेई का क्वेश्चन भी था, आई थिंक कौन सा, 2018, हाँ शायद 2018 जिस साल ऑफलाइन पेपर था। 2018 में ऑफलाइन पेपर था। I3 माइनस, तो I3 माइनस को तोड़ देते हैं, I इंटू I2 माइनस, ठीक है, I इंटू I2 माइनस। एक I को हम ले लेते हैं सेंट्रल एटम, एंड बाकी 2 I को हम लेते हैं अपना मोनोवैलेंट एटम, बिकॉज वैलेंसी ऑफ I क्या होता है? 1। वैलेंसी ऑफ I क्या होता है? 1। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम कितना हो गया मेरा? I का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 7 प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कितना हो गया? 2। अब प्लस माइनस गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे है माइनस चार्ज। माइनस चार्ज क्या है? मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ हैज अ नेगेटिव चार्ज। अब किसी मॉलिक्यूल पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब क्या है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तब तो नेगेटिव चार्ज है, मतलब क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर पॉजिटिव चार्ज होता मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर गया है, तब तो पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, मतलब +1 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो गया? 7 + 2 9 + 1 10 by 2, मतलब 5। हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना है? 5। तो जब 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3d, 1s + 3p + 1d, 1 + 3 1 4 + 1 5, ये मिलके बना दिया sp3d। ओके, मुझे ना बोझ गया हो गया, इतना आसान है I3 माइनस। ओके चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक और करते हैं NO3 माइनस। ओके, NO3 माइनस। सेंट्रल एटम क्या हो गया? नाइट्रोजन, मेरा सेंट्रल एटम हो गया। कोई मोनोवैलेंट एटम है? तो नहीं, कोई भी मोनोवैलेंट एटम नहीं है, बिकॉज जब N मेरा सेंट्रल एटम हो गया तो अब मेरे पास बचा केवल ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन होता है डाइवैलेंट, तो ऑक्सीजन मेरा है डाइवैलेंट, जिसका हमको काम है नहीं। तो हम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकाल लेते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, माइनस मतलब -1 है, मतलब गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, +1 डिवाइडेड बाई 2
6/2 दैट इज 3। मतलब NO3 माइनस में नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना आया? 3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 sp2। so here the hybridization of NO3 minus is sp2। बुझे हो गया। ओके, सो इस फॉर्मूला से लगभग 90% और 85% क्वेश्चन लग जाएगा फॉर दोज मॉलिक्यूल विच हैज ओनली वन सेंट्रल एटम। मैक्सिमम 90% मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल हैज ओनली वन सेंट्रल एटम। ओके, मैक्सिमम 90%, मोर देन 90% मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल हैज ओनली वन सेंट्रल एटम। और इस फॉर्मूला से क्वेश्चन लग जाएगा। सिंपल क्या करना है, हमको नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फाइंड कर लेना है। जब नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकल गया तो हाइब्रिडाइजेशन बहुत आसान है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं एक और फॉर्मूला पे। एक और ये फॉर्मूला क्या है ना, इसमें भी हम निकालते क्या है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसमें भी हम निकालते नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ही है, ठीक है। बट दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। इसमें भी हम निकालते नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसमें भी हम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल पता कर लेंगे। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंस मेरे पास जब भी हमको हाइब्रिडाइजेशन पता करना है, हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकाल लेंगे। अब वो हम किसी भी फॉर्मूला से निकालें, आइदर इफ द पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कंटेन्स ओनली वन सेंट्रल एटम तो हम पहले वाले फॉर्मूला से निकाल लेंगे। इफ मोर देन वन इफ मोर देन वन सेंट्रल एटम है तो फिर हम इससे मूव करेंगे। ओके, बट निकालेंगे क्या, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। एंड सिंस अगर मेरे पास नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल गया तो हम आसानी से हाइब्रिडाइजेशन पता कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। सो मूव करते हैं आगे। फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल इजीली फाइंड द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, लेट्स डू अ एग्जांपल। नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम ना, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। ओके, सो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बाई सेंट्रल एटम, number of lone pair on central atom which is not delocalized. This will give the number of hybrid orbital for all kind of molecule. Okay, तो हम एक बनाते हैं, एक molecule लेते हैं। Okay, okay, now then according to this formula number of hybrid orbital is what, number of sigma bond plus number of lone pair on central atom। तो अगर हम इस B का हाइब्रिडाइजेशन निकाले तो क्या होगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है, एक 2 3 4। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या हो गया, 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। इस B का निकाले तो 1 2 3 मतलब sp2 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 sp2। ओके, sp2 एंड दिस विल बी 1 2 3 sp2 एंड दिस विल बी 1 2 3 एंड 4 sp3। okay, so by using this formula we can find the hybridization like this। now तो चलो आगे बढ़ते हैं। now आगे बढ़ने से पहले ना एक टर्म डिफाइन कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, coordinate bond is just like a sigma bond. It is just like a sigma bond which is formed by the axis to axis overlapping. Coordinate bond is just like a sigma bond which is formed by axis to axis overlapping। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करने के लिए क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करने के लिए हमको चाहिए एक लोन पेयर और एक एम्प्टी ऑर्बिटल, एक लोन पेयर और एक एम्प्टी ऑर्बिटल, एक लोन पेयर ऑफ फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल एंड वन एम्प्टी ऑर्बिटल। ठीक है, सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या हो गया मेरा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इट इज जस्ट लाइक सिग्मा बॉन्ड, sigma bond it is formed by axis to axis overlapping, and it require
one vacant orbital and one lone pair of fully filled orbital. Okay, so coordinate bond is simply just like a sigma bond, and it is formed by axis to axis overlapping, and it required one vacant orbital and one lone pair of fully filled orbital to form coordinate bond. जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, एंड इट विल फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ओके, इसमें कुछ दिक्कत होना चाहिए नहीं. बूझे बूझे. चलो आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ते हैं तो आगे है तीसरा तरीका टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन. और तीसरा तरीका क्या है? फॉर कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल. Now how to find the hybridization of the molecule which contain carbon in it. So we will discuss here how to find the hybridization of the molecule which contain carbon in it. सिंपल सा तरीका है, ठीक है. हम लोग चेक करेंगे पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड, एंड अकॉर्डिंग टू दैट we will give hybridization. ओके, पाई एंड सिग्मा चेक करके हम लोग दे देंगे. अगर 4 पाई अगर 4 सिग्मा 0 पाई sp3, 3 सिग्मा 1 पाई sp2, 2 सिग्मा 2 पाई sp. सो कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकालना आसान है. हम क्या कर लेंगे, उस मॉलिक्यूल का नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेंगे. इफ number of sigma bond is 4 and pi is 0, hybridization will be sp3. If the number of sigma bond is 3 and pi is 1, hybridization will be sp2. And if number of sigma bond is 2 and pi bond is 2, hybridization is sp. Simple. अगर 4 सिग्मा 0 पाई sp3, 3 सिग्मा 1 पाई sp2 एंड 2 सिग्मा 2 पाई sp. करना है ना, हमको इसमें निकालना है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन. क्वेश्चन आएगा एंड क्वेश्चन हमसे पूछेगा कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन. तो ईच कार्बन यहाँ पे C C C C C C. ओके, एंड ईच कार्बन इज अटैच्ड विद 2 हाइड्रोजन. यहाँ पे हर कार्बन 2 हाइड्रोजन से अटैच है, मतलब हर कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, एंड पाई बॉन्ड एक भी नहीं है. तो जब हर कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3. मतलब यहाँ पे ईच कार्बन has the hybridization of sp3. Okay, here each carbon has the hybridization of sp3. ठीक है, तो ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन एंड ये कार्बन. These 2 carbon has one sp one pi bond. These 2 carbon has one pi bond. These 2 carbon has one pi bond. Means each carbon has one pi bond and 3 sigma bond. Means each carbon has sp2 hybridization. यहाँ पे हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, यहाँ पे हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है. ओके, तो सिमिलरली वी कैन फाइंड फॉर हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन. कैसे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करने से हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाता है. तो सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं. अब यहाँ पे हम देखते हैं BF3 का खुद का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा. जनरल हाइब्रिडाइजेशन नॉर्मल क्या होगा, बोरोन सेंट्रल एटम है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 प्लस मोनोवैलेंट एटम 3 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 6/2 दैट इज 3. मीन्स नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 आया, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2. सिमिलरली NH3 का क्या हो जाएगा,
5 प्लस 3 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन, 3 हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 8 बाई 2 4, मतलब नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज 4, मतलब हाइब्रिडेशन इज sp। नाउ अब हम क्या बोले थे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करने के लिए एक वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए और एक फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल का लोन पेयर चाहिए। तो नाइट्रोजन हैज a lone pair, boron has vacant orbital, so it will form coordinate bond. Nitrogen has a lone pair, boron has vacant orbital, so it will form coordinate bond. Okay, so after forming coordinate bond, now the hybridization of NH3 will sp3 and the hybridization of BF3 will be sp32. Both will have hybridization of sp3. Okay, now one more example is S3BO3. S3BO3 now, S3BO3, that is boric acid. Boric acid, okay. Then S3BO3 का हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, बोरोन सेंट्रल एटम, मतलब 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 3 मीन्स sp2। But when boric acid will dissolve in water, when boric acid will be dissolved in water, its hybridization will get changed and its hybridization will change to sp3, because here boron has a vacant orbital and when it will dissolve in H2O it will form coordinate bond and its hybridization will get increased by sp3. Okay, so this is all about hybridization. इससे ज़्यादा hybridization में पूछेगा नहीं, and we will discuss some other topic in next classes. Okay, so thank you. बुझे ना, बुझिएगा।